Actually, one more creativity is rest, ladies. Uh, Change the chapter of this idiom and change the category and change the subject. Sarika, who, who muddies the waters when mm, During the marriage, during the marriage? Yeah. बड़े जीजा जी, छोटे जीजा जी, बड़े फूफा जी, छोटे फूफा Actually, the some of the close relatives try to muddies the waters during the marriage uh, due to lack of proper attention. हम्म सारिका, शादी में कौन गुड़ गोबर करता है? कुछ शादी में कुछ जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो गुड़ गोबर करने की कोशिश करते हैं जब उनको अटेंशन नहीं मिलता. ऋतु ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल. Yes. रेणु भाभी, who can muddy the waters? The people who are not attentive and accurate to their accurate in their profession can muddy the water. Can? Muddy the water. Muddies. No. First form only. Muddy. Muddy the water. भाभी, कौन गुड़ गोबर कर सकता है? जिनको अपने प्रोफेशन का पूरा ज्ञान नहीं है वह लोग मड्डी गुड़ गोबर कर सकते हैं. ओके. ऋतु, why should student muddy in their studies? When you try to make negative sentence, it will be good. Okay. Come again, Renu. Sir, I have to ask negative sentence. Let me help you. Okay. Ask who should not. Okay. Who should not muddy the waters? I think every citizen should not muddy the waters. कौन गुड़ गोबर नहीं, किसको गुड़ गोबर नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से सारे सिटीजन्स को, हर नागरिक को गुड़ गोबर नहीं करना चाहिए. Ritu, you have to ask Poonam. Okay, Poonam, who has done this muddy of waters? नहीं. Ritu, why are you using do verb? What is the need? किसने यह कर दिया? सर मुझे बोलना है, यह गुड़ गोबर किसने कर दिया? Who has done this muddies of water? अच्छा, तुम इससे जितनी जल्दी हो सके कोशिश करो, बाहर निकलो ऋतु. हर क्रिया में करना लगा रहता है. थोड़ी देर पहले मैंने क्रिया मिटाई है, उसमें करना लगा हुआ. खराब करना. Who has muddy the waters? कौन सा फॉर्म रख रही हो ऋतु? फर्स्ट फॉर्म. तो गलत है. चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ता है, ती है, ते है. नहीं, तुमने हैज लगाया. परफेक्ट टेंस हो गया तो. Yes, you can turn the page and see the formula of
perfect tense. If you don't have here, who does muddy the does water? हम तब लगाते हैं ऋतु जब हम या तो इन्वर्टेड बनाते हैं या नेगेटिव। नेगेटिव बनाते हैं। और अपर्णा ने हु वाला क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल का कर लिया है। अपर्णा हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हु मडीज द वाटर ड्यूरिंग मैरिज। सारिका आंसर्ड, द नियरेस्ट रिलेटिव्स मडी द वाटर ड्यूरिंग मैरिज। और हिंदी था, मैरिज के दौरान कौन सब गुड़ गोबर कर देता है। और हिंदी था, निकट के जो संबंधी होते हैं वो मैरिज के दौरान जरूर गुड़ गोबर कर देते हैं। who could not muddy the waters? कौन? wait, let her answer. Okay. Poonam, who could not muddy the waters? Modi ji could not muddy the water. कौन गुड़ गोबर नहीं कर सका? मोदी जी गुड़ गोबर नहीं कर सके। Aparna, should I ask to Aparna? You can ask me, Renu. Okay. Who would not muddy the water? ये कौन सा चैप्टर है पूनम? The future, simple future, sir. Who would not? You are using would. Okay, so will. Who will not muddy the waters? Well, I think any sensible person will never muddy the waters. सर गुड़ गोबर कौन नहीं करेगा? मेरे ख्याल से समझदार व्यक्ति कभी भी गुड़ गोबर नहीं करेगा। ओके, इट इज डन। अब जो चैप्टर रह गए हम बाद में समय आने पर, नहीं तो कल जैसा ही छूट जाएगा। We started the round with Aparna, right? So Aparna asked the related question to the same sequence, so that everybody should get one by one. Okay, Sarika, what should be the first point for present perfect continuous tense? The first point of present continuous tense, present perfect continuous tense is formula, should be formula. इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, चलो इसका अभ्यास कर ही लेते हैं। हम यहाँ से पूनम से शुरू कर देते, बिल्कुल उल्टा राउंड खेलते हैं। पूनम, what should be the first point? The first point should be the identification of बस the identification. Okay. पहला बिंदु क्या होना चाहिए? पहला बिंदु आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब अगला सवाल करो किसी और से। Okay. Sarika, what should be the formula for present perfect tense? What should the next? Okay, Renu, can you ask the next question? Ask Yes. Ritu. Okay, Ritu, what is the second point? Should. What should be the second point? This is not good. Sarika, can you? Ritu, can you please tell me what should be the
Identification of present perfect continuous tense. The identification should be present perfect continuous tense is ता रहा है, सी रही है, से रहे हैं। रितु, तुमने शुड भी लगाया और एक जगह इज भी लगाया, ये एक साथ नहीं आ सकता, शुड और इज। तुमने ऐसा बोला था, द आइडेंटिफिकेशन शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नहीं आएगा सर, शुड और इज एक साथ नहीं आ सकता। शुड बी। इज हम तब पूछते हैं जब हम कोई चीज पहले से दे देते हैं, जैसे हम पूछेंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंड, क्योंकि हमने लिखवा दिया है। या प्रेजेंट सिंपल का अगर पूछना होगा तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वो लिखवा दिए। और शुड हम तब रखते हैं जब हम आपसे गैसिंग करवाते हैं। तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोई बात प्रेजेंट नहीं, हम इसको ऐसे परफेक्ट लेते हैं। ऋतु, कंटिन्यूअस अपर्णा से पूछो, am I audible? There what is a is little what is problem in the the network. formula? Aparna, what is the formula of present perfect continuous tense? Formula or identification? Should I tell identification na first? Okay, tell me what is the identification of present perfect continuous tense? Identification of present perfect continuous tense is रहा है, रही है। है, ता आ रहा है या फिर रहा है। Are all done or anybody is rest? Poonam and Renu Bhabhi, Renu Bhabhi हाँ, are and rest. Poonam Bhabhi are rest. Should I ask to Renu Bhabhi? Renu Bhabhi, what should be the identification of present perfect continuous tense? The identification of present perfect continuous tense should be कर रहा है, कर रहे हैं, कर रहा है, रहे हैं और रहा, रहे, बस, and so on. और I have to who? Poonam. Okay, Poonam, what should be that? Poonam is She is left. अच्छा रितु, you are done ना? Sir, all are Okay दोस्तों, listen. जैसे सुबह से वह पढ़ाई करता आ रहा है सर, मेन आएगा इसमें। मतलब भूतकाल में क्रिया शुरू हुई है और अभी भी जारी है या जस्ट अभी खत्म हुई है।
We can say like that. Thank you very much, Ritu, for extra effort. That is so nice. दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कोई अलग टेंस है नहीं एक्चुअली। काफी जगह लग रही है, इसलिए मैंने समय लिया इसमें। और केवल इतना लिखने के बाद आप अपने पेन को विराम दीजिएगा। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सुनना ज्यादा जरूरी है, लिखना नहीं। दूसरा सवाल पहले मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद चर्चा करता हूँ। Ritu, what should be the second point? The second point should be formula. Thank you. एक बार हिंदी कर लेते हैं। ऋतु, दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? दूसरा बिंदु सूत्र होना चाहिए। Very nice. Now mute yourself and listen. दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा, some people is network problem is coming, हो सकता है फिर डिस्कनेक्ट हो जाए। ये हम जो कुछ करने जा रहे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर कहीं चॉपिंग हो तो बताइएगा। पूनम इज बैक, दैट इज वेरी नाइस। दोस्तों, जैसा कि हेडिंग बता रहे हैं, दिस इज अ टेंस विथ टू टेंसेस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। तो चलिए हम एक एक करके सबका योगदान लेते हुए आगे बढ़ते हैं। Then what should be the first thing in the formula? Sir, the first thing in the formula should be subject. Thank you very much. Ritu, what should be the second thing in the formula? The second thing should be in the formula is, sorry, the second thing should be in formula helping verb. Very nice. एक बार हिंदी कर लेते हैं। सूत्र में दूसरी चीज कौन सी होनी चाहिए रितु? सूत्र में दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। Very nice. Poonam, what should be the helping verb here? Sir, the helping verb should be have here. Okay. अब हम यहाँ पे Has, thank you have, Poonam. has or have. Okay.
म्यूट योरसेल्फ। दोस्तों आप इस बात को सुनिएगा। पहले देखिए हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को लेते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की जो दो सबसे बड़ी पहचान है सारी का वो बताओ, सहायक क्रिया कौन कौन सी है? सर हैज या हैव रहता है और बस बस बस। दोस्तों अगर हम अभी आपसे में से किसी से पूछें व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, तो जो बचपन में आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा आप फट से बता दोगे, लेकिन मैं वैसा नहीं चाहता। क्यों? अभी कुछ क्षण बाद आपको पता चलेगा। कुछ लोगों को एकदम रटा होगा तो फट से बता सकते हैं, बट देखिए हम इसको मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रितु हमारे साथ बोलती जाएगी। रितु अनम्यूट करो और हमारे साथ बोलो। Yes. I am I am neither neither going to ask going to ask what is the formula what is the formula, nor nor going to tell going to tell what is the formula। what is the formula. रितु इसका हिंदी बताओ। मैं ना तो ये पूछने जा रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला है, और ना तो ये पूछने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है। सर कंफ्यूज हो गए। वेरी नाइस। अपर्णा तुम मुझे विजिबल हो, तुम बताओ, थोड़ा सा हिंदी सुधार के बताओ। मैं ना तो फॉर्मूला बोलने जा रहा हूँ और ना ही फॉर्मूला पूछने जा रहा हूँ। पूछने जा रहा हूँ। सारिका, रितु तुम म्यूट कर लो, तुम बीच में बोल के कंफ्यूज कर देती। सारिका जी, मैं ना तो पूछने वाला हूँ कि फॉर्मूला क्या है और ना ही बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला क्या है। थैंक यू। ये वाला वाली का एक जनरल अभ्यास दे रहे थे, प्लस नीदर नॉर का उच्चारण भी करवा रहे थे, वो हमने रितु से करवा लिया। तो ना ही मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ ना ही पूछने वाला। सो द क्वेश्चन इज राइजिंग, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो द आंसर इज वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कवर द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उत्तर ये है कि हम सब मिलजुल कर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला खोजने जा रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, हम लेते जा रहे हैं, जिससे हमें जो सहयोग चाहिए हम लेते जा रहे हैं। अब पूनम ने बता दिया या जिसने भी बताया कि इसकी सहायक क्रिया होती है, सबसे बड़ी पहचान हैज या है। अब रेनू से हम सहयोग ले रहे हैं। रेनू, हैज और हैव के बाद हमेशा क्या आता है? सर सर उसको बीन आएगा, हैव बीन। नहीं। अपर्णा तुम बताओ। सर जैसे कि आपने बताया था 5 चीजों के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, हैज, हैव, हैड, बी एंड गेट। तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ये सुनना चाह रहे थे रेनू एक्चुअली हम, इसलिए हमने फॉर्मूला किसी से पूछा नहीं। हमने थोड़ी देर पहले बोला ना, फॉर्मूला किसी को स्कूल या कॉलेज के दौरान का रटा होगा तो फट से बता देगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों करके हुआ, ये फॉर्मूला अंग्रेजी में किस आधार पे बनाया होगा, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जा रहे हैं। वी आर गोइंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, what the problems the Britishers had to face while making this tense or the formula. अब has, have, had, be, get, इन 5 चीजों के बाद अभी ध्यान से सुनना, एक नई चीज ऐड कर रहे हैं हम। या तो V3 आता है या नाउन आ जाता है। अब तुम लोग थोड़ा सा चौंक गए होंगे।
कठिन नहीं है। आई हैव पेन, आई हैव ब्लैक पेन। नाउन। आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। नाउन। तो हैज, हैव, हैड, बी, गेट इनके बाद या तो अगर वर्ब आएगी तो तीसरे रूप में आएगी, अन्यथा नाउन आ जाएगा। शी हैज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। वी हैव कॉन्फिडेंस। यू हैव इनफ टाइम। ये सब नाउन आ रहे हैं और आप ये सब जानते हैं। अंबानी हैज अ बिग बिल्डिंग, बहुत सारे नाउन आ जाएंगे। तो अब अंग्रेज अपने ही नियम में थोड़ा सा उलझ गए थे कि उन्होंने देखा कि हम पहले नियम दे चुके हैं कि उनके बाद 5 चीजों के बाद V3 का चोली दामन का साथ होता है। तो उन्होंने बोला यार अब यहाँ कौन सी वर्ब रख दे, ऐसी कौन से थर्ड फॉर्म रख दे जिससे कि जैसे हुए इसके बाद यहाँ पे प्लेड रख दे या गॉन रख दे या संग रख दे, कोई सा भी वर्ब का तीसरा रूप रखते हैं दोस्तों। तो हैव और हैज के बाद V3 रखने का नियम तो पूरा हो जाएगा, किंतु फिर ये इनमें से कोई भी क्रिया मूल क्रिया के साथ जाके टकराएगी, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी बाकी है। कंटिन्यूटी इज रेस्ट। तो ऐसी स्थिति में वो फंस गए। तो फिर उन्होंने घोषणा की, जो पोप जॉन पॉल थे उन्होंने घोषणा की, अच्छा सब लोग ढूंढो और कोई ऐसी क्रिया ढूंढ के लाओ जिसको यहाँ पे रख दे, तो जो कि निरापद हो, जिसके आने से बाकी किसी पर कोई असर भी ना पड़े और थर्ड फॉर्म रखने का नियम भी पूरा हो जाए। तो सब ढूंढने निकल गए। खूब खोजबीन के बाद उनको एक ही क्रिया मिली जो कि अपने आप में एक से अधिक मीनिंग भी रखती थी और निरापद भी थी। कई बार उसके आने से अर्थ नहीं बदलता है, और वो क्रिया थी कौन सी? बी। बी क्रिया थी। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ पे हम प्लेड नहीं रख सकते हैं, गॉन नहीं रख सकते, संग नहीं रख सकते हैं, रिटर्न नहीं रख सकते, कोई भी क्रिया नहीं रख सकते हैं। तब उन्होंने बी रखने का निश्चय किया। सब लोग एक मत हो गए कि हाँ यहाँ बी क्रिया रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं रख सकते, तो फिर उनको थर्ड फॉर्म रखना पड़ा बी। अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूटी पे दोस्तों। और कंटिन्यूटी की सबसे बड़ी पहचान, चलो हम इंग्लिश में पूछते हैं। हु इज रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन? सर आई एम रेडी। Okay. Renu raised the hand first. So I'm asking to Renu, what is the biggest identification of continuous tense? Sir, the biggest thing is to take the first form of the verb. Thank you. अब हम रितु से पूछते हैं, what is the biggest identification of any continuous tense? The biggest identification of any continuous tense is the ing is Stop, full stop, बस। अब आगे बढ़ोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी कर लेते हैं। किसी भी कंटिन्यूस टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है रितु? किसी भी कंटिन्यूस टेंस की सबसे बड़ी पहचान ing है। थैंक यू। तो ing हमें लगाना है कंटिन्यूटी के लिए, और वो ing सारे का हम केवल काय में लगा सकते हैं? सर वो आईएनजी हम केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा सकते हैं। दोस्तों अब सुनिएगा जो मूल बात हम जिसकी ध्यान आकर्षित करा रहे थे कि इस टेस्ट में बीन तो हम 27 साल से बजाते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी विचार किया था कि यहाँ बीन क्यों आ जाता है?
रटा हुआ है, भोंक लिया है सब। हमें बताने हेल्पिंग वर्ब की तरह, थर्ड हेल्पिंग नहीं, वर्ब की तरह। वो भी मान लिया कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन भी रखने की जरूरत क्या थी? तो समय बताने के लिए। नहीं। कंटिन्यूटी बताने के लिए। सर क्योंकि वो प्रेजेंट अभी परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट का थर्ड फॉर्म हो गया और कंटिन्यूअस का नहीं, ing जवाब तो फर्स्ट अभी वन। अपन ने ढूंढ लिया बच्चों, जवाब ही तो ढूंढा इतनी देर में अपन ने। हाँ, उन्हें मिला ही नहीं था ना, इसलिए कोई हम प्रश्न नहीं कर रहे, हमने बोला कि भैया तुम रटे बैठे हो, बीन बजाते आ रहे हो 27 साल से कि इस चैप्टर में बीन लगता है, मालूम ब्ला 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 ब्ला, लगाते आ रहे हो, लेकिन Now बीन we क्यों, got it. कहाँ से आ गया अचानक, कैसे बीन? अभी उसका थोड़ा सा संतोषजनक बिल्कुल, कारण बहुत समझ अच्छे में से समझ में आ गया। बिल्कुल एकदम बढ़िया, मजा आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, बल्कि हम इसमें आपकी मदद फिर से लेते हैं और नहीं इस बात को एक बार और दोहरा देंगे। अब हम पूनम से, बहुत देर से पूनम इज म्यूट। पूनम, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थिंग? Sir, the next thing should be object. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, म्यूट योरसेल्फ। अब ऋतु से पूछते, ऋतु व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग? The next thing should be extension. अब दोस्तों सुनिएगा, यहाँ पे सीधे एक्सटेंशन नहीं आता। हम एक चीज भूल गए, हम बोलने वाले थे कि जो लोग राइटिंग वर्क के बहुत प्रेमी हैं वो एकदम से लिखिएगा बात, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होने वाला है, और जो जिसने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा 10th में, तो उसको याद होगा फॉर्मूला हमेशा एक लाइन में लिखा जाता है, नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो पहले देख लो कितनी जगह लगेगी, फिर लिखना। डू नॉट डाई टू राइट डाउन। जबलपुर की भाषा में बोले तो लिखबे के लाने मरे ना जाओ, लाइक दिस, जस्ट वॉच इट। अब एकदम से हम यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं रख सकते दोस्तों, हमें रखना पड़ेगा यहाँ सी के लिए कुछ, और वो हम अच्छे से जान क्या आएगा, कोई भी बता दो। सर योर वॉइस इज चॉपिंग। सर सिंस और फॉर। हाँ, अब हम यहाँ से के लिए क्या रखेंगे, कोई सिंस से के लिए क्या रखेंगे? सर वी विल फ्रॉम नहीं, सिंस और फॉर, FOR फॉर। दोस्तों, जब आपका बैच शुरू हुआ था तब हमने आपको अक्षर से अनुवाद निकालने सर का योर पूरा वॉइस प्रयास। इज चॉपिंग, ओह, आई कुडंट लिसन प्रॉपरली। Sir, should I disconnect? But you and the problem is from your side, So Sarika. should I Can, disconnect and connect? Okay. That is audible clearly here. actually guys, nowadays the network is creating problem all over India. My son told me this thing because he plays online games, and everybody from here and there, they are saying, complaining the same thing, the network is creating problem in all over India. Okay, now let me repeat. तो अभी हम सीधे एक्सटेंशन नहीं लगा सकते। ऋतु यू आर नॉट विजिबल, व्हाट इज द रीजन यू आर डूइंग? हाँ, थैंक यू। सीधे एक्सटेंशन नहीं लगा सकते ऋतु, हमें ये से के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, और रेनू ने बता दिया कि से के लिए या तो सिंस लगेगा या फॉर, क्योंकि इनके जो बेसिक्स हैं अच्छे हैं। दोस्तों, बैच के शुरू में हमने आपको अक्षर से अनुवाद निकालने का प्रयास शुरू किया था, अक्षर से अनुवाद से, लेटर टू लेटर ट्रांसलेशन। आज उसको समाप्त करते हैं, आखिरी बार हम आपको अक्षर से अनुवाद से बाहर निकालते हैं। इसके बाद
अगर हम से के लिए अक्षर से अनुवाद करते जो राधा वाले हैं वो एकदम से फ्रॉम लगाते, लेकिन आप में से कुछ लोगों को याद आ गया होगा कि यहाँ सिंस या और ही लगता है, याद कर लीजिए, फ्रॉम नहीं लगता है, अक्षर से अनुवाद नहीं होता है। तो दिस इज द लास्ट टाइम टू कम आउट ऑफ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। से इज करेक्ट बट सिंस एंड फॉर, अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। अब बताइए सारिका, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पॉइंट? Sir, the next point should be the time. यस रितु, यहाँ एक्सटेंशन आएगा ही, टाइम विल बी द एक्सटेंशन। तो हमें आखिरी में ये लेना होगा, वी विल हैव टू फिल दिस। अब ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों बहुत बड़ा, अगर विजिबल ना हो तो बताना, हम अलग से उसको फिर टाइप करके भेजेंगे, बल्कि हम बुलवा लेते हैं, सारिका से शुरू करते हैं। सारिका, स्पीक द फॉर्मूला वन बाय वन एवरी। Yes, sir. Subject plus have been slash has been plus V1 plus ing plus object plus since slash for plus time. Aparna di. The formula is subject plus have been plus oblique has been plus V1 plus ing plus object plus since oblique for plus time. Renu Bhabhi? Subject plus have been oblique has been plus first form of the verb plus ing plus object plus since oblique for plus time. Ritu? The formula of present perfect continuous tense is subject plus has been or has been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus time. The formula is subject plus have been oblique has been plus V1 plus ing plus object plus since oblique for plus time. So all are done. थैंक यू। नाउ लेट्स डिसाइड लेडीज कि सिंस कहाँ पे लगता है और फॉर कहाँ पे लगता है। हम सबको बराबर मौका देते हैं, शुरुआत सारिका से करते हैं। सारिका, कैन यू टेल मी, हिंदी और इंग्लिश विल डू, वेयर कैन वी यूज सिंस, वेयर कैन वी यूज फॉर? जी सर, सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर मतलब टाइम का पता चलता है, और जैसे 1942 या फिर हम किसी सन के साथ या फिर इस डेट से इस डेट तक, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बारे में हमें पता चलता है। और फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमें टाइम का नहीं पता चलता, तो हम ऐसे बोल देते 3 days 4 months, मतलब हम कब से कब तक हैं वो हमें नहीं पता। सर यू आर म्यूट। Ask the same question to Ritu. Ritu will ask Poonam. Poonam will ask Renu. Ritu di, can you tell me where we use the since and for? सिंस हम यूज करते हैं जब हमें टाइम की कंफर्मेशन रहती है कि जैसे मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। और अगर डेज बताना हो, 2 days 3 days या 1 week, तो हम फॉर का यूज करते हैं। पूनम, आप बताइए कि हम सिंस और फॉर का यूज कब और कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? तो हम सिंस सर जब एक निश्चित अवधि रहती है, जो टाइम पीरियड निश्चित रहता है, कंफर्म रहता है, तो वहाँ पर सिंस का उपयोग होता है। और जो अनिश्चित अवधि रहती है, जो उसमें हम लोग
तो उसमें फॉर को यूज इस्तेमाल करते हैं। रेनू, We use since for a definite time and for a indefinite time. For 2 days, as Sarika and Ritu says, and we are in Delhi since 1980. So that is a since for a definite time. Aparna, where we use since and for in this formula? Bhabhi, we can use since as non-countable, and we can use for countable. Just like 1, 2, 3, 4 as a countable and 1984 non-countable. दोस्तों, आपने सब अपनी जगह बिल्कुल सही बताया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से समझाया जाता है, दिया गया है। अलग अलग टीचर्स भी अलग अलग तरह से समझाते हैं। हम कुछ इसको इस तरह से ले रहे हैं। आप बिल्कुल सही अपनी जगह। चलिए थोड़ी सी इंग्लिश बोलते हैं लिखते लिखते। सारिका से शुरू करेंगे। सारिका सुनना। Since is used for point of time and for is used for period of time. Sorry. Since is used for point of time and for is used for period of time. Aparna di. Since is used for point of time and for is used for period of time. Renu Bhabhi. Since is used for a point of time and period is used for a नहीं ठीक है for time, period of time. Since is used for a point of time, for is used for a period of time. Okay. Since is used for point of time and for is the used for period of time. Poonam? since is used for point of time and for is used for period of time. Thank you. All are done. दोस्तों, हम कुछ लिखवाते भी जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, समझिएगा। जैसे 2 o'clock। 2 o'clock इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हमें ऐसा भी कह सकते हैं, हम जिसको बांट नहीं सकते वो पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हम जिसको बांट सकते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 hours। 2 hours को हम बांट सकते हैं। 1 घंटा प्लस 1 घंटा 2 घंटे हो गए, या 1.5 घंटा प्लस आधा घंटा। हम ऐसे बांट सकते हैं। हम जिसको बांट सकते हैं या जिसकी अवधि है वो पीरियड ऑफ टाइम। हम कुछ उदाहरण लिखते जा रहे हैं, आप साथ साथ लिखते जाइएगा।
दोस्तों हम इसको रट नहीं सकते और ना ही रटा जाना चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि सर मॉर्निंग तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, मॉर्निंग तो सुबह इतने बजे से लेकर इतने बजे तक होती है। तो वो पहली दृष्टि में ऐसा लगता है, लेकिन हम मॉर्निंग को बांट नहीं सकते या ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एक काम करो तुम सुबह के थोड़ी देर बाद आ जाना, ऐसा नहीं बोल सकते। हमें बोलना पड़ेगा दोपहर में आ जाना या शाम के थोड़ी देर बाद आ जाना, नहीं रात में आ जाना। तो भले ही पहली दृष्टि में कुछ शब्द आपको अजीब लगे, डोंट वरी, उसको लेकर चिंतित मत होइएगा, फिलहाल तो लिख लीजिए। बस निवेदन ये है कि जब जो भी सेंटेंस किसी के ऊपर बनाने को आए तो वो सिंस और फॉर लगाने से पहले 30 सेकंड ले ले, अच्छे से सोच ले, फिर सिंस या फॉर लगाए, अच्छे से सोच के लगाए। सर ये एस मंथ मीन्स 5 है, 5 मंथ्स। अच्छा 5 months। Ritu, have you written? Yes, sir, I have written. Renu is she's writing. Write it down. Take it easy. तब I तक हम have written. चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल और महत्वपूर्ण नहीं है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से है। तो लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ज्यादा सेंटेंस देंगे, 4-5, मतलब एक एक से सबसे बनवा लेंगे। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, इसके बाद आप जानते हैं, तो उसमें भी सिंस फॉर लगता है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह भी गया दोस्तों, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाके दूर हो जाएगा। और उसमें भी 1-8% रह गया, नहीं बना कि कहाँ सिंस लगाते कहाँ फॉर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाके वो पूरा अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मान लीजिए उसके बाद भी अगर किसी का रह जाता है तो फिर चिंता मत करना, वो कभी दूर नहीं होगा, खुश रहना। तो चलिए हम पहला सेंटेंस आपको लिखवाते हैं और क्रम से इस बार हम ऋतु से बनवाएंगे या ऋतु को एक बार सुनवा देंगे अच्छे से पूरा। लिखिएगा पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। अब दोस्तों आज से इस चीज का लुत्फ उठाना शुरू कीजिए। आपने कई बार गलतियां की और मैंने आपको टोका कि जैसे ही हिंदी वाक्य में से नाम का शब्द आता है तो हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाना होता है। अब वो समय आ गया है, तो हिंदी वाक्य में जैसे ही से लगे आप समझ जाइएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। Let me ask once, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. I have to make this. चलो ऋतु ने बोल दिया तो उसको बनाने, तो उसने कम सेंटेंस बनाए हैं, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। ओके ऋतु, गो अहेड। That sentence belongs to present perfect continuous tense. देखो ऋतु तुम्हें एस लगा दी तो अच्छे से बनने लगा इस काम में, है ना? This is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and subject is gardener. गार्डनर को थोड़ी सी लिपस्टिक लगा। The gardener. Firstly, I will take the subject.
and the subject is the gardener. And after that, I will take the helping verb, and the helping verb is has. And then I will put the main verb in this sentence, and the main verb is in the sentence is been. And then I will take the verb here, the first form of verb here, and the first form of verb here is give. I will put the ing with to first form of verb, and then I take the um, um, here since, and lastly I will take the morning. So sentence is the gardener has been giving the water to plant since morning. Very nice, Ritu. थैंक यू रितु. म्यूट योरसेल्फ. रितु के साथ और एक और किसी ने भी बोला था, हाथ तो सभी ने उठा लिया. हाँ. Sir, I will. इट्स वेरी डिफिकल्ट. हमारी क्लास में बिल्कुल बराबरी से हम एक एक करके सबको मौका देते हैं. देखिए ऐसे जो चेयर जमी रहती है. तो अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन कितना एब्सेंट हुआ है, किसने कितनी देर में ज्वाइन किया है. तो पहले हम पूनम को देते हैं ये मौका. Sir, I have to make this sentence, and this sentence belongs to present perfect continuous tense. This is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject of the in this sentence is the gardener. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is has been. Later on, I will take the first form of the verb with plus ing, the first form of the verb, and is watering. Later on, I will take the object, and the object is the plant. Later on, I will take since. Later on, I will take the time. The time is morning. Lastly, I will put the full stop. So the full sentence should be: the gardener has been watering the plants since morning. सेंटेंस तो सही बना लिया पूनम, लेकिन एक लोचा है इसमें बीच में. देखते हैं उसको कौन सुलझाता है. रेनू, इट्स योर गो. Sir, I have to make this sentence, and this sentence belongs to present perfect continuous tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is the gardener. Thereafter, I will take the helping verb, and the helping verb is has been. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is water, and I will add ing along with that, so watering. Then I will take the article the. Thereafter, I will take the object, and the object is sir noun हो गया ये plants. Plants. ऑब्जेक्ट ही है. ऑब्जेक्ट क्रिया पे जिस पे असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं. Okay. Plants. Then at the end I will take since. What is since? Since plus time is morning. So the sentence is: the gardener has been watering the plants since morning. अब तुम दोनों बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना. हु इज रेडी? अपर्णा और सारिका. वो गलती सबसे हो रही है, डिस्क्रिप्शन में गलती हो रही है.
I think I should make, then she will definitely make the perfect. अरे Oh. Okay, I have to make this sentence, and this sentence belongs to present perfect continuous tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is the gardener. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is has. Then I will put the been with the helping verb. And later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is water. Then I will put, then I will add the ing with the first form of the verb, and the this is watering. Thereafter, I will take the since. Then I will take the object, and the object is plant. Plants. Then I will take the since for the time, and lastly I will take the extension, that is morning, and I will put, and the end of the sentence I will put the full stop. The gardener has been watering the plants since morning. Sarika. yes sir. This sentence belongs to present perfect continuous tense and it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is the gardener. Later on, I will take the helping verb and the helping verbs are been, has and been. यस, यहाँ लोचा था। तुमने सही कर दिया। थैंक यू। रिपीट दिस सेंटेंस। जी. Later on, I will take the helping verb and the helping verbs are has and been. Thereafter, I will take the first form of the verb and the first form of the verb is water. Then I will put ing with the first form of the verb and the word is watering. Later on, I will take the object and the object. Later on, I will take the article the. Thereafter, I will take the object and the object is the plants. Thereafter, I will take the preposition and the preposition is since. Lastly, I will take the time and the time is morning. And I will put full stop at the end of the sentence. So, sentence is the gardener has been watering the plants since morning. टाइम में एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा सर। The morning. Later on, I will take the article the. This morning. The morning. Okay. And lastly, I will take the time and the time is morning. जी. दोस्तों, इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। सबने उसको सिंस या फॉर करके पुकार दिया। दिस इज अ preposition. Since is a preposition, for is a preposition. और वहां पे सभी से गलती होती है। Later on, I will take the helping verbs. इसको थोड़ा सा गलत बोला था सारिका ने। And the helping verbs are has and been या have and been. अगली बार आप ध्यान रखिएगा। Later on, I will take the helping verbs. Helping verbs. And the helping verbs are. Okay. Aparna, who has been watering the plants since the morning? या ऐसा बदल देते हैं। How long has the gardener been watering the plants? So the garden has been watering the plants since the morning. गार्डनर माली कितनी देर से पौधों को पानी दे रहा है? सर माली सुबह से पानी को वाटर पौधों को पानी दे रहा है।
Sarika, how has the सारिका gardener, से सारिका ने how सेंटेंस long, बनाया, तो आगे बढ़ाओ ना, किसी और से पूछ लो। okay, Poonam, how long the gardener, how long has the gardener been watering the plant since morning? Arey, sorry. How long has the gardener been watering the plant? Aparna, the gardener has been watering the plants since the morning. मालिक कब से पानी दे रहा है? माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है. रेणु, how long has the gardener been watering the plants? He has been watering the plants since the morning. रेणु, माली कब से पौधों को पानी दे रहा है? वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा है. रितु, how has been the gardener watering the plants? Sorry. How has been the No. gardener? How Ritu, has been thank you. You are aware. Thank you. How long has the gardener? how long has the gardener been watering the plants? Renu, the gardener has been watering the plants since morning. माली कब से पौधों को पानी दे रहा है? रितु ने सुबह से ही लिपस्टिक पौधों नहीं को लगाई पानी- बेटा। The gardener has been watering the plants since morning. Since the Since morning. the- Since the morning. माली कब से पौधों को पानी दे रहा है? माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है. Sir, how long has the gardener been watering the plants? Well, he has been watering the plants since the evening. सर, माली पौधों को कब से पानी दे रहा है? Well, वो शाम से पौधों को पानी दे रहा है. So this sentence was appropriately made by Sarika. Now I am giving you another sentence and it will be made by Ritu. Write down the next sentence. लता मंगेशकर सन 1936 से गा रही हैं. लता मंगेशकर सन 1936 से गा रही हैं. और दोस्तों, ये जो साल है, ये किसी मैगजीन में मैंने पढ़ा था, तथ्यात्मक है, गूगल कीजिएगा चाहे. वो समय बहुत छोटी थी, अपने पिताजी हृदयनाथ मंगेशकर के साथ मंच पे पहली बार गई थी 1936, 1936. Ritu, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. That sentence belongs to present perfect continuous tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject here, and the subject is Lata Mangeshkar. And then I will take the helping verbs, and the helping verbs are here has or has and been. And then I will take the first form of verb, and the first form of verb is sing. Then I'll put ing, so word is singing, and then I will take the word for here, and lastly I will take the object. Nee, uh,
V1 plus ing, and then I will take the word for here, and lastly I will take time, and time is 1936. Lastly, I will put the full stop. So sentence is Lata Mangeshkar has been singing for 1936. दोस्तों, Singing for 1936. यहाँ इस छोटे से तथ्यपूर्ण वाक्य में मैंने जानबूझ के एक हिंदी का शब्द रखा था एक्स्ट्रा। बहुत सरल है, लेकिन जब पूछो तो एकदम से नहीं बनता, वैसे हम प्रयोग करते रहते हैं। रितु, हमने हिंदी सेंटेंस में रखा सन 1906। सन 1936, ईयर 1936। यस, अब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हम एकदम से सन आ जाता है तो भूल जाते हैं कि क्या है। Sarika, from which year has Lata Mangeshkar been singing? Sir, she has been singing since the year of 1936. सारिका, लता मंगेशकर किस वर्ष से गा रही हैं? सर, वे 1936 से गा रही हैं। सन 1936 से गा रही हैं। अपर्णा दी, from which year has Lata Mangeshkar been singing? Sarika, she has been singing since the year 1936. दी, लता मंगेशकर जी किस ईयर से गा रही हैं? सारिका, लता मंगेशकर वे सन 1936 से गा रही हैं। अपुन, from which year has Lata Mangeshkar been singing since the singing? She is singing since 1930, the year 1936. Sorry, come again, Bhabhi. She is singing since the year 1936. Sorry, Bhabhi. Come again, please. She has been singing since the year 1936. लता मंगेशकर जी कब से गाना गा रही हैं? वह 1936 से मंगेशकर जी किस सन से नहीं, ऐसा नहीं, क्या था? रितु, तुम्हारी बातें सुनाई दे रही हैं, म्यूट कर लो बेटा। वह 1936 से सन से गाना गा रही हैं। सन 1936 से गाना। Okay. Where is Poonam? I asked. Poonam? I You asked Poonam? Okay, No, now you did not mention the name, yeah. Okay. So, Poonam, from which year has Lata Mangeshkar been singing? Has been singing. No. Been singing. Poonam, you are mute. Renu, she has been singing since the year 1936. लता मंगेशकर किस साल से गाना गा रही हैं? किस सन से गाना गा रही हैं? रेणु, लता मंगेशकर वह सन 1936 से गा रही हैं। रितु, from which year Lata Mangeshkar been singing
Poonam, I think she has been singing since the year of 1936. ऋतु, लता मंगेशकर किस सन से गा रही हैं? वे 1936 से गा रही हैं, सन 1936 से गा रही हैं. Sir, from which year has Lata Mangeshkar been singing? Well, Ritu, she has been singing since the year 1936. Off नहीं लगेगा sir. Year of नहीं. 1936. देख लो. Is the year 1936. Okay. Okay. Guys, should we conclude or continue? It's 2 o'clock. Okay sir. थैंक यू कल कुछ और मजेदार सेंटेंस अपन देखेंगे इसी के. Thank you for joining. Thank you sir. थैंक यू थैंक यू सर. सर.